Dear students of class 12, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, in today's topic, we will do question number 12 of exercise 4.5, chapter number 4, determinants. Question number 12 is, let A is a determinant, let A is a matrix, 2 cross 2 matrix 3, 7, 2, 5, and B is another matrix 6, 8, 7, 9, 6, 8, 7, 9, it is second row is 7, 9. तो आपको क्या करना है, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. तो ये हमें वेरीफाई करना है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. तो सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स ए है, गिवन मैट्रिक्स ए, पहले हम वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्ले दिस विद matrix A, that is 3, 7, 2, 5. This is matrix A. So we will find here first of all determinant of A. Determinant of A. Now determinant of A is determinant of this matrix 3, 7, 2, 5. 5, this is equal to 3 5s are 15 minus 7 2 7s are 14. Here we will get determinant is 1. So determinant of A is equal to 1, which is not equal to 0, hence A inverse exists. A inverse exists. So we will find cofactors of, first of all we will find cofactors of this matrix A. So cofactor of this is A11 element, this is A22 element, this is these are A11 element, this is A12 element, this is A21, this is A22. Somehow this is A11, we represent this as A11. So it is cofactor is capital A11. तो यहाँ पर हम लेते हैं इसका कोफैक्टर, अगर ये रो हम डिलीट करेंगे और ये रो, तो इसका कोफैक्टर 5 आएगा विद प्लस साइन, बिकॉज -1 पावर 1 + 1 i + j. और इसी तरह से A12, तो ये है A12, तो इसका कोफैक्टर है A12. अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 के साथ माइनस साइन आएगा, क्योंकि 1 i + j -1 पावर i + j, that is 1 + 2 -1 power 3, that is equal to, that gives a sign minus, it is -2. And A21, this element, this is 2 cross 2 matrix. Now this is A21, its cofactor will be capital, we denoted by capital A21. So it is, we will get here -1 power 2 + 1, that is -1 power 3. We will get here minus sign, and this row is deleted and this column is deleted. We will get here -7, and in the same way we will get A22, that is this element 5. So we will delete here this row and second row and second column, and we will get here 3. It is cofactor. Now we will find here adjoint of A. First of all, we will find adjoint of A. Adjoint of A is the transpose of the matrix formed by these cofactors. So A11 cofactor is 5, it is -2, it is -7, A22 is 3. इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, T लिखते हैं यहाँ पर हम T. So it is transpose is equal to change rows into columns. So we will get here 5 -2, ये फर्स्ट रो इस ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, -7 3 सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम बनेगा यहाँ पर -7 और यहाँ पर 3. तो ये हमें मिल गई यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए. तो इस तरह से हम ए इन्वर्स भी यहाँ पर निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ए इन्वर्स की ज़रूरत है.
तो हम ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इज 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी हमने यहाँ पर निकाला 5। दिस मैट्रिक्स इज adjoint of A, it is 5 minus 7 minus 2 3। सो 1 बाई 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स आएगी 5 minus 7 और minus 2 3। so this is A inverse. Dear students, you have to remember here A inverse is 5 minus 7 minus 2 3। और इसी तरह से हम B इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो B इनवर्स के लिए हम वी विल प्ले विद दिस मैट्रिक्स नाउ, मैट्रिक्स B is here, we will write here B matrix now। B matrix is equal to 6 8 7 9। So we will first of all find here determinant of this B, that is determinant of this matrix 6 8 7 9। so it is determinant is equal to 6 9 or 54 minus 7 8 is or 56। so we will get here determinant of B is equal to minus 2, which is not equal to 0, hence B inverse exists। it is a non-singular matrix. B inverse only exists if the determinant of B is not equal to 0. Determinant of B is equal to here minus 2, which is not equal to 0, hence B inverse exists। now we will find cofactors. To find B in adjoint of B, we have to find cofactors of matrix B। तो यहाँ पर हम cofactors of matrix B निकालने की कोशिश करेंगे। B है यहाँ पर हमारे पास B मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स इज 6 8 7 9, second row 7 9। so this is our B11 element and its cofactors will be B11। it is small, the elements of the matrix are represented by small letters and the cofactor of the element is represented by capital letter। so B11, it is B1I and J, minus 1 power ij minus 1 power 1 plus 1, it will give plus sign। so यहाँ पर हम ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट 9 आएगा, तो वो 9 ही मिलेगा हमें। cofactor of 6 is 9, cofactor of 6 is 9 and cofactor of 8, that is B12 element, cofactor of 8 is, it is my 1 I is 1, j is 2, minus 1 power ij minus 1 power 1 2, that is minus 1 power 3, that we will get here minus sign, and here first row and second column we will get here minus 7। so this element cofactor of this 7, that is at the position B21, so it is sign will be minus, second row and first column we will get here minus 8, and B22 that is element at second row and second column, second row we will delete second row and second column, B22 we will get here plus sign, it is 6। when minus 1 power even number we will get plus sign, and minus 1 power odd number 2 plus 1, minus 1 power odd आएगा तो साइन माइनस आएगी, जब minus 1 power 2 plus 2 तो साइन इवन प्लस आएगी। तो now we will, these are cofactors। now adjoint of B is equal to the
matrix form transpose of the matrix formed by cofactors. So cofactors से ये matrix बन जाती है 9 -7 -8 और 6. तो इसका ट्रांसपोज हम लेंगे टी, यहाँ पर लिखते हैं हम ट्रांसपोज. तो इसका ट्रांसपोज रोज इनटू change rows into columns, that is first row will become first column 9 -7 -8 और 6 यहाँ पर आएगा. तो this will be the adjoint of B. Now we will find here B inverse because we need here A inverse, वो हमने निकाल लिया. B inverse वो भी हमने निकाल लिया. तो हम करेंगे B inverse. B inverse is 1 by determinant of B into adjoint of B. Adjoint of B, that is equal to 1 by determinant of B is determinant of B आपने निकाल लिया है यहाँ पर -2 निकल गया ये -2. determinant of B is -2, ये हमने निकाल लिया है. और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है 9 -8 -7 और 6. तो यहाँ पर बी इनवर्स आपको ये हासिल होगा -1/2. तो ये अगर हम -1/2 अंदर लेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, या 9 × 1/-2 और 9 डिवाइड बाई 9 × 1 that is 9 divided by -2, that we will get here -9/2 first element. -2 यहाँ पर -8 को डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर +4 आएगा हमें, +4. बिकॉज आप ऐसे देखिए 1/2 चेक कीजिए, 1/2 -1/2 into this 9, it is equal to 9 1s are 9 divided by 2 -9/2. तो यही हमने पहला एलिमेंट लिखा. सेकंड एलिमेंट 1/2 into this element -8. so minus into minus plus आएगा यहाँ पर 8 divided by 2 which is equal to 4. so हमने यही दो एलिमेंट यहाँ पर लिखे -9/2 और 4. और इसी तरह से अगर हम ये दो एलिमेंट -1/2 into -7, that we will get here +7/2. और इसी तरह से 1/2 और 6 को मल्टीप्लाई जब करेंगे या -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो we will get here -3. so this is B inverse. we have got B inverse. So our B inverse is is 7/2 और यहाँ पर क्या है -3. so we have got here B inverse. now what we have to do, हमने क्या करना है असली A into B, ये मैट्रिक्स A into B इनवर्स निकालना है. B इनवर्स हमने निकाला, A इनवर्स हमने निकाला, तो पहले हम यही करेंगे, B इनवर्स इंटू A इनवर्स करेंगे हम, क्योंकि हमने निकाला है B इनवर्स और A इनवर्स भी निकाला है. तो B इनवर्स, नाउ B इनवर्स इंटू A इनवर्स. B इनवर्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स -9/2 और यहाँ पर 4, 7/2 और यहाँ पर -3. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको किसके साथ, A इनवर्स के साथ. A इनवर्स हमने कहाँ पर निकाल ली है, ये है A इनवर्स. दिस इज A इनवर्स, दैट इज 5 -7 और -2 और यहाँ पर है 3. तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करना है इसको. तो ये आप आसानी से मल्टीप्लाई आपने सीख लिया है कैसे करते हैं हम. तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई में -9/2 into 5 करेंगे पहले, दिस रो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. -9/2 into 5 ऐसे करेंगे हम, -9/2 इंटू करेंगे यहाँ पर 5. so it is equal to 9 5s are 45 -45 divided by 2. so we will get here first -45 divided by 2
और यहाँ पर 4 इंटू 2 8, दैट इज़ 4 2s आर 8, दैट इज़ -8। और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट आएगा, यहाँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इसे 9/2 इंटू -7, 9 7s आर 63 डिवाइड बाय 2। और यहाँ पर 4 इंटू 3 +12 तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे हमें, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई करना है हमें सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम 7/2 इंटू 5, दैट इज 35 डिवाइड बाई 2। नाउ -3 इंटू 2, 3 2s are 6, it will be here +6। और यहाँ पर हमें क्या आएगा, 7/2 इंटू 5 इट इज़ 35, और -3 इंटू 2 इट इज़ 6। और यहाँ पर 7/2 इंटू सेकंड रो और ये कॉलम 7 7s are 49, ये 49 आएगा डिवाइड बाई 2। ऐसे हम करते हैं, आप समझ रहे होंगे। 7/2 हम इस रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7/2 इंटू -7, 7 7s are 49 -49 डिवाइड बाई 2, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा। और इसी तरह से -3 इंटू दिस 3 इट विल बी इक्वल टू -9। तो इसको और सिंपलीफाई हम करेंगे तो क्या बनेगा हमें, इट विल बी इक्वल टू 45। अगर यहाँ पर हम 45 इंटू 8s are 16, तो हमें यहाँ पर देखो -45 डिवाइड बाई 2 -8, तो यहाँ पर 2 LCM लेंगे, -45 -2 8s are 16, so it will be equal to 61। 6 + 5 11, 4 + 1 5, 5 + 1 6, -61 डिवाइड बाई 2, इट विल बी -61 डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर क्या होगा, ये 63 + 24, 63 + 24 इट डिवाइड बाई 2, इट विल बी 87 डिवाइड बाई 2। यहाँ हमें 87 डिवाइड बाई 2 आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर 35 + 12 आएगा यहाँ पर। तो इसको थोड़ा हम साफ करेंगे, रफ वर्क है यहाँ पर। यहाँ पर 35 डिवाइड बाई 2 + 6 इट विल बी इक्वल टू 35, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, +12 डिवाइड बाई 2 इट विल बी इक्वल टू 7, 3 + 1 4, 47/2। तो यहाँ पर आएगा 47/2। और इसी तरह से यहाँ पर 49, यहाँ पर एक और कैलकुलेशन क्या है, -49 डिवाइड बाई 2 -9, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -49 यहाँ पर अगर हम 1 लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -49 इंटू 1 49, -2 9s are 18 डिवाइड बाई 2 1s are 2, तो इट विल बी इक्वल टू 8 + 9 17, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 67 डिवाइड बाई 2 आएगा यहाँ पर, 67 डिवाइड बाई 2 माइनस with sign minus, 67 divided by 2. So this is our B inverse A inverse, B inverse वो आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंथी है। ये हमने क्या हासिल, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो ये आप याद रखें, ये चीज़ ये हमें ज़रूरत है। तो हमने एक साइड क्या यहाँ देखा, B इनवर्स A इनवर्स, तो ये आ गया हमें ये मैट्रिक्स। तो हम इसको रब करेंगे, हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, AB इनवर्स। अब हमें AB को मल्टीप्लाई करना है, AB को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
डिटर्मिनेंट हम आप यहाँ पर एक काम करेंगे, आपको कुछ यहाँ पर रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक चीज़ रखना पड़ेगा। एक तो हमने क्या लिया है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया हमें, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने लिखा है यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए बी। चलो देखते हैं क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या निकला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या निकला था यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर 1 निकला था और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें -2 निकला है। शायद इनकी ज़रूरत मत पड़ेगी इधर। अब हमें RHS हमने देखा क्या निकला हमें ये, और अब हमें LHS निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे देखो ये बोर्ड साफ़ करना पड़ेगा, बोर्ड साफ़ करना पड़ेगा। देखो हम अब निकालेंगे A इंटू बी, हमारे पास A इंटू बी निकालेंगे। A मैट्रिक्स ये है 3 7 2 5 और B यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 8 7 9। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 ये रो लेंगे और ये कॉलम लेंगे। 3 इंटू 6 18, 7 इंटू 7 प्लस 49। ए बी हमें निकालना, ए बी का इन्वर्स निकालना है हमें। तो ए बी और यहाँ पर 3 इंटू 8 24, 7 इंटू 9 प्लस 63 और इसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 7 35 और यहाँ पर 2 इंटू 8 16, 5 इंटू 9 5 9 हज़ार 45। तो यहाँ पर हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी, क्या मिलेगी हमें मैट्रिक्स, यहाँ ऐड करेंगे हम 9 प्लस 8 17, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 67 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 2 8 87। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, 5 प्लस 2 7 और यहाँ पर 3 प्लस 1 4, यहाँ पर 47 आएगा और यहाँ पर 5 प्लस 6 आएगा हमें 11, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 61। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, कौन सी, ए बी मैट्रिक्स हमें आ गई ये। तो अब हम यहाँ पर ए बी हमने निकाला प्रोडक्ट ए बी का। अब हमें निकालना है ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पर जगह की कमी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 67 87 और 47 और यहाँ पर 61। तो इसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमें, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू आएगा 87। हाँ ये आप समझ गए होंगे। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, पहले ए बी का प्रोडक्ट लिया, मैट्रिक्स आ गई है, फिर मैट्रिक्स ए बी जो आ गई उसका डिटर्मिनेंट लिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 67 इंटू 61 माइनस करेंगे यहाँ पर 47 इंटू 87। सो दिस इज इक्वल टू 67 इंटू 61 इट इज़ इक्वल टू 40। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हमें आएगा 4087 और इसका मल्टीप्लाई अगर यहाँ करें 47 इंटू 87 अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो आएगा 4089। तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमें क्या आएगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ -2। तो यहाँ पर हमें -2 मिलता है, या यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हैंस
ए बी इनवर्स जो हमें निकालना है, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो अब हमें ये मैट्रिक्स जो है इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। किसके कोफैक्टर्स? इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स। नाउ वी विल फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी। प्रोडक्ट जो हमने लिया ए बी, तो इसके कोफैक्टर्स हमें क्या आएंगे? देखो, तो यहाँ पर हमने कोफैक्टर्स इसके ये लिए हैं। हम इसको यहाँ पर हमने A11 B11, तो इसको C11 से हम डिनोट करेंगे, C11। तो हम ये डिलीट करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर हमें 61 आएगा। और इसी तरह से C12 इसके साथ माइनस आएगी साइन, ये फर्स्ट रो डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम, तो -47 आएगा। और इसी तरह से C21 इसके साथ माइनस है, क्योंकि -1 पावर 2 + 1 वो -1 पावर 3, दैट विल गिव अस माइनस साइन। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर -87। और यहाँ पर C22 यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 पावर 2 + 2 4, दैट विल गिव अस प्लस साइन। So this second row and first column we will get here 67. Now we will rub this portion. हम ये पोर्शन सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वो है बी इनवर्स ए इनवर्स। हमें ये मैट्रिक्स आ गई, तो अब हमें ए बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए बी, हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, क्योंकि वहाँ हम इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस हमें निकालना है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट हमने ये लिया है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट भी लिया है, और इसका हम क्या लेंगे अब, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमने लिए हैं इसके। तो वो आएगा मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, फॉर्मड बाय कोफैक्टर्स। कोफैक्टर पहला है C11 61, C12 आ गया -47, और C21 आ गया -87, और C22 आ गया 67। तो इसका ट्रांसपोज अगर हम लेंगे, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, दैट इज 67। यहाँ पर ये कॉलम में चेंज हो जाएगा माइनस। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स चेंज रोज इनटू कॉलम्स। फर्स्ट रो यहाँ पर 61 है, -47 इट इज फर्स्ट रो, इट विल बिकम फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो -87 67, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, -87 और यहाँ पर 67। सो दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी, जो हमने कंबाइन ली, इनका एडजॉइंट लिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, नाउ वी विल फाइंड इनवर्स ए बी इनवर्स, दैट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमने कैलकुलेट करके रखा है। हियर इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज -1/2। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज दिस मैट्रिक्स। नाउ वी आर reaching at the end of this question, that is -1/2 into adjoint of AB, that is 61. Here it is -87, here it is -47, here it is 67. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1/2 करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको, या -2 से इसको डिवाइड सबों को करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमें 60, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, 1/2 इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 61 into this -1/2, so we will get here -61 divided by 2। ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे 61 divided by 2, -61
डिवाइड बाई 2 पहला एलिमेंट आ गया, और यहाँ पर -87 डिवाइड बाई दिस -2 या -1/2 इंटू माइनस दिस, तो यहाँ में प्लस साइन आएगी 87 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर हमें मिलेगा -47 इंटू -1/2, वी विल गेट +47 डिवाइड बाई 2, और -1/2 इंटू 67/2 67 ऐसे है ये, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। -1/2 इंटू करेंगे दिस नंबर 67, so we will get here, so 61 into 67 into 1, that is 67 divided by 2 with sign minus, so यहाँ पर -67 divided by 2, this is our AB inverse। so अगर हमने पहली बार हमें क्या आ गया यहाँ पर B इनवर्स A इनवर्स, हमें ये मैट्रिक्स आज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमें इक्वेशन सेकंड मिल गई। सो हम ये साफ करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट B इनवर्स A इनवर्स हमने क्या निकाला यहाँ पर -61 डिवाइड बाई 2, 87 डिवाइड बाई 2, 47 डिवाइड बाई 2, -67 डिवाइड बाई 2, तो ए बी इनवर्स भी हमें यही आ गया -61/2, 87 डिवाइड बाई 2 सेम, 47 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर भी यही आ गया, -67 डिवाइड बाई 2 यहाँ भी यही है। सो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ए बी इनवर्स इज इक्वल टू दिस बी इनवर्स ए इनवर्स, ये दोनों हमें किसके बराबर आ गया, दोनों, और यहाँ देखो ये माइनस ये 61 डिवाइड बाई 2, 87 डिवाइड बाई 2, और यहाँ 47 डिवाइड बाई 2, और -67 डिवाइड बाई 2, तो ये मैट्रिक्स हमें ये दोनों इसके बराबर। सो वी हैव वेरीफाइड दिस। Dear students, this question was a bit lengthy, but it is easy. You do some practices for this question. You make 2-3 practices and you will find it very easy. आज की वीडियो में इतना ही, बस खुदा हाफिज़।